Good afternoon, all of you. How are you doing, all of you? Everyone is good? Yes. So today we have a topic that is working at height. It is a very important topic for everyone. We have already done the first part, that is the work at height and hazards and many things we have completed in that video. यदि आप नहीं देखें कुछ लोग तो उसको वीडियो को देखेंगे ताकि पार्ट 2 आपका क्लियर हो जाएगा. एंड वी हैव 2 candidates right now, both of standing beside me, and they will explain regarding this topic, and that is a important topic for all of you guys if you want to become a safety officer in future. So you should know these things. If you don't know about the working height, so how will you explain? How will you tell to people? How will you give the TVT toolbox talk training? It is very tough to give that toolbox talk training. So you should know about these things and those things. So I'm just going to ask the question regarding working at height, Mr. Yasir. And what's your name? Mohammad Kamil, sir. Where are you from? Sir, I'm from Pratapgarh. Both of you also? Yes, sir. I'm also from Pratapgarh. You are from Pratapgarh. Tell me something about yourself. Sir, my name is Mohammad Yasir, and I am from Pratapgarh, and I have done my schooling and high schooling from Pratapgarh itself, and from now on I have been studying in Sultanpur in your institute, or I have been here from the last 1 month or 2 months, previous 2 months. Okay. So, The topic is working height. Now, working at height. So I'm going to ask you, what do you know about the working height? Sir, That's your turn. working at height, any work done above 2 meters above the ground, or we can say working at height is normal. Any work above 2 meters ground or 3 feet above the ground, we can say it is working at height, or working at. Can you speak in Hindi for some of people who is not understanding English? So you should also So for those people, explain in Hindi. So for the people, for the. तो कोई भी कार्य अगर वो 2 मीटर या 3 फीट ज़मीन से ऊपर किया जा रहा है तो उसको वर्क एट हाइट पे ही कंसीडर करते हैं. और वर्किंग एट हाइट पे कार्य करने में कई भी प्रिकॉशंस होते हैं, उसी को हज़ार्ड बोला जाता है कि मतलब क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं वर्किंग एट हाइट पे काम करने को, उसी को प्रिकॉशन इसमें हज़ार्ड दिया गया है. और सेफ्टी इसका फोल्डिंग टैग दिया गया है. इसका फोल्डिंग मीन्स मतलब अगर कोई भी वर्क हो रहा है वो वर्क एट हाइट पे है, 2 मीटर या 3 मीटर अबव है, तो वहाँ पे इसका फोल्डिंग का ज़रूरत आपको लेना ही पड़ेगा. या तो 2 ऑप्शन है, स्टेयर और या इसका फोल्डिंग. स्टेयर उतना सूटेबल नहीं है. Very good, you explaining, Mr. Yasir. Now it's turn off, Mr. Hello, my name is Mohammad Kamil Ansari. Kamil. Yes. जी. Kamil, tell me. तो अकॉर्डिंग टू हिम, जैसा कि इन्होंने बताया कि वर्क एट हाइट बेसिकली कोई भी हम वर्क करते हैं अबव 2 मीटर या 4 फीट, उसे हम कहते हैं वर्क एट हाइट. और जब हम वर्क एट हाइट पे जाते हैं, कोई भी वर्क अगर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द फीट, अगर बात करना चाहे आपको फीट में, तो 7 फीट अबव अगर हम काम करते हैं तो उसको वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं. और 1.8 मीटर में आप कंसीडर करते हैं तो वो उसी को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 फीट की ऊंचाई. मतलब हमारी हाइट से ऊपर की बात अगर होगा ही तो वर्क एट हाइट में कंसीडर होगा. वहाँ पे स्कैफोल्डिंग पार्ट मचान का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम हाइट पे काम करने के लिए सक्षम होंगे. तब हम वहाँ पे कैपेबिलिटी के तरीके एबिलिटी हमें मिलेगी, अदरवाइज हम वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे. हाँ. तो जब हम वर्क एट हाइट पे काम करते हैं तो वहाँ पे हज़ार्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. हज़ार्ड थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली जो बहुत ज़्यादा कॉमन हज़ार्ड रहता है वो वहाँ से फिसल के गिरने का डर रहता है. क्योंकि जब हम ऊंचाई पे काम करते हैं तो हमारे साथ सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है कि हम यूज़ कर रहे हैं सेफ्टी का सही से. हमारे पास गार्ड रील, बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, चीज़ें होती हैं जिनसे हम सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं. दैट्स गुड, वेरी गुड. नाउ इस जस्ट थोड़ा सा गैप करिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो गाइज, इस तरीके से हमारे ये एकेडमीज़ पे सारे स्टूडेंट के साथ जो है हम कोलैबोरेट करते हैं वीडियोज़ में, और उनको हम वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो यहाँ से सीखा जा रहा है, जो हम सिखा रहे हैं, जो वो सीख रहे हैं. तो एक दूसरे से शेयरिंग होती है और हमारे स्टूडेंट से ये इन्फॉर्मेशन भी जाती रहती है कि ये, और इससे जो है आपका हेजिटेशंस वो कम हो जाता है, आपकी बोलने की क्षमता बढ़ जाती है, आपके अंदर एक कैलिबर होता है, स्ट्रेंथ आती है कि एक कैमरा फोबिया है या स्टेज फोबिया है, जैसे आपको ख़त्म होता है. जब आप अपनी अंदर ये कैपेबिलिटी लाते हैं तो स्टेज पे आने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग एट हाइट. Working on temporary permanent structure that can greater than 1.8 meters above the ground of the floor level.
कहने का सेंस है कि कोई भी कार जो है 1.8 मीटर पे किया जाता है तो उसे वर्केट हाइट में कंसीडर करते हैं गाइस। तो 7 फीट के ऊपर वर्केट हाइट में कंसीडर हो रहा है, तो उस पर अगर हम कार कर रहे हैं तो हमें सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस सेफ्टी मेजर्स लेने वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और अगर के एक मैंने यहाँ पे डेफिनेशन और लिख दिया है, आप बहुत ईजी लैंग्वेज में इंटरव्यूअर को आप समझा सकते हैं, यू कैन एक्सप्लेन अबाउट इट। एनी वर्क अबव 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड दैट इज कॉल्ड वर्केट हाइट। कोई भी कार 2 मीटर की ऊंचाई पे किया था उसे वर्केट हाइट में कंसीडर करते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नाउ हियर वी गो, आगे बढ़ते हैं। स्कैफोल्डिंग टैग्स है। स्कैफोल्डिंग टैग्स क्या होता है? स्कैफोल्डिंग टैग्स में हम क्या चीजें होती है जो एक्सिस के रूप में हमें मतलब जानना होता है। एक्सिस का मतलब एक्सिस एंड एग्रीज होता है, आने जाने का रास्ता, या कौन सी चीज यूज करना है कौन नहीं यूज करना है उसके बारे में बात करते हैं। नाउ मिस्टर कामिल एंड यासी जस्ट रीड एंड टेल समथिंग अबाउट दिस फर्स्ट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप जस्ट कंप्लीट। Never use the incomplete or uncertified scaffolding. सो पहला पॉइंट है नेवर यूज़ द इनकम्प्लीट और अनसर्टिफाइड स्कैफोल्डिंग। दैट मीन्स कि हमारा जो स्कैफोल्डिंग है पहली चीज़ वो कम्प्लीटली होना चाहिए, कहीं से वो टूटा फूटा ना रहे, उसमें कोई एक कमी ना रहे। उसके साथ साथ वो प्रॉपरली हमारा जो मतलब दैट मीन्स नेवर यूज, कभी भी आपको इनकम्प्लीट, आपको यहाँ पे कभी भी नेवर कभी यूज नहीं करना है इनकम्प्लीट, मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी नहीं हुआ है और नाउ यू वांट टू वर्क ऑन इट, आप उस पर काम करना चाहते हैं, दैट इज रॉन्ग फॉर यू गाइस। वो अनसेफ कंडीशन अनसेफ एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको काम नहीं करना है, और जब तक वो अनसर्टिफाइड है, सर्टिफाइड नहीं किया हम लोगों ने, हमने ऑथराइज टीम से उसकी परमिशन नहीं लिया, सो वी कांट वर्क ऑन इट, we can't stand we can't climb on that we can't use that scaffolding, so हम नहीं यूज कर सकते हैं। so that's why we have to take the permission, we have to take the permit to work, then we will start the work on it। ठीक है, उस पर काम कर सकते हैं। the next point is that never make unauthorized alternation, कभी भी unauthorized alternation का यूज नहीं करना चाहिए हमें, never use। ठीक है। third is that never climb up on the guard handle to gain extra height। for example just come in suppose that that person is climbing by the from the गार्डरेल सिस्टम। आप गार्डरेल सिस्टम से ये क्लाइंब कर रहे हैं, ओवर रीचिंग जिसे कहते हैं, और एक्स्ट्रा वेट दे रहे हैं, और हमारा गार्ड जो है यहाँ आ रहा है, इसको बोलते हैं 1100 mm, जिसको हम अगर फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 3.6 फीट आता है। तो 3.5 फीट की हाइट पे एक्चुअल में हमारी हाइट यहाँ तक पहुँचती है, तो ये प्रोटेक्शन है। लेकिन गार्डरेल सिस्टम जो स्कैफोल्डिंग में लगा होता है, यदि वो नीचे होगा तो नीचे होगा, अगर हम थोड़ा सा ओवर रीचिंग करेंगे तो हम सीधा फॉल फ्रॉम हाइट हो जाएंगे। तो बिग मिस्टेक विच इज डन बाय द पीपल एंड वर्कर्स ऑन वर्क साइट, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वर्क साइट पे ये काम करने की वजह से। गॉट इट गाइस? यस और नो? एवरीवन से यस। ओके, नाउ हियर वी गो, आगे बढ़ते हैं। एंड नेवर ड्रॉप और थ्रो थिंग्स डाउन फ्रॉम द स्कैफोल्डिंग। कभी भी कोई भी चीज आपको ऊंचाई से थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। बैरिकेड नहीं है या कोई बंदा आके नीचे स्टैंड हुआ है, स्कैफोल्डिंग, अंडर द स्कैफोल्डिंग कोई चीज ड्रॉप हुआ, सर पे फट गया, इंजरी हो गई। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, फॉलिंग फ्रॉम हाइट। फॉलिंग फ्रॉम हाइट क्या होता है? व्हाट इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट? द मिनिमम हाइट ऑफ द टॉप रेल अबव द फ्लोर लेवल शुड बी 1100 mm। कितना मिनिमम हाइट होनी चाहिए किसकी? गार्डरेल सिस्टम की 1100 mm। इसको कन्वर्ट करते हैं 3.6 फीट, मतलब 3.5 फीट के अराउंड जो है होनी चाहिए, और 3.5 फीट हाइट अराउंड जो है ये आपका यहाँ तक समथिंग आ जाता है। ये हो गया। उसके बाद में आपका हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये कंप्लीट हो गया। और एक चीज है, नेवर क्लाइंब ऑन टू द गार्डरेल टू गेन एक्स्ट्रा लोड। ये चीज इससे जुड़ी हुई है, कभी भी गार्डरेल सिस्टम पे हमें एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं करना चाहिए और क्लाइंबिंग नहीं करना चाहिए, ताकि हम फॉल फ्रॉम हाइट ना हो। तो ये हमारा गाइज जो है, इसको हमने बता भी नहीं पाया था, दैट इज अ पार्ट 2। बाकी ये चीज़ जो है आपके उसमें टाइटल में, और वहाँ पे आपको यूट्यूब पे फेसबुक पे मिल जाएगा कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका गाइज। जो वीडियो नहीं देखे उसको देखेंगे तो पार्ट 2 क्लियर हो जाएगा। सो ऑल ऑफ यू क्लियर दिस टॉपिक? ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।